Our today's topic is brown algae and which comes under the Phaeophyceae. So member of Phaeophyceae are commonly known as brown algae and basically they all are found in sea water. तो sea water में पाए जाने वालों को हम क्या बोलते हैं? Marine, marine, marine. That means they are found in the salty water, or you can say they are found in the sea water. Basically all the brown algae are multicellular forms. ये भी एक important चीज़ है. They all are multicellular forms. No unicellular phaeophyte is reported as in green and red algae. Green and red algae can also be in the unicellular form, but in Phaeophyceae, that means brown algae, are only multicellular and they are very giant in their form, है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं brown algae. You can see on your screen, this is the brown algae, example of brown algae. आप देख सकते हो कितना height है इसका. And here also there are some examples of the brown algae and commonly we can call them kelps. इनको हम general language में क्या बोलते हैं? Kelps. I have told you in previous lecture that these are also known as kelps. तो ये kelps कहलाते हैं and they are basically brown in color because उसका नाम ही brown algae है क्योंकि उनका color brown होता है. And why they are called brown and why their color is brown? Because it depends upon the pigment which is present into the algae, because pigments which are present into the plant gives the color to the plant. So in brown algae, chlorophyll A, chlorophyll C and the brown pigment that is called fucoxanthin. This is the pigment which gives the brown color to the algae. तो fucoxanthin भी पाया जाता है and because fucoxanthin is more in amount, तो जो क्लोरोफिल ए और सी है उसके कलर को मास्क कर देता है, तो आपको ब्राउन ही दिखता है जो एल्गी होता है. एंड बेसिकली अराउंड 2000 स्पीशीज ऑफ ब्राउन एल्गी इज नोन सो फॉर एंड दीज ब्राउन एल्गीज show various kind of variation in their size and form because they are simple, they are branched, they are filamentous. लाइक इन एक्टोकार्पस वहाँ पर तरह तरह के वेरिएशन इनके जो स्ट्रक्चर में है वो देखने को मिलते हैं. और क्योंकि बहुत प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, कई बार इनकी हाइट 100 मीटर्स तक भी पहुँच जाती है. मतलब हम सोचते हैं कि एल्गीज आर माइक्रोस्कोपिक, है ना, कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बट समटाइम्स दे अटेन द हाइट ऑफ 100 मीटर्स. So you have to remember the kind of chlorophyll. They have chlorophyll A, they have chlorophyll A, they have chlorophyll C, they have certain amounts of carotenoid which gives the orangish color, and xanthophylls which is the main pigment. So they are present in it, these color. And if you see in the water, or you can say wherever they are found, तो आपको लगेगा कि दे आर इन ओलिव ग्रीन इन कलर एंड देर आर वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम. xanthophyll ज़्यादा है तो दे विल लुक डार्क ब्राउन, xanthophyll कम है तो थोड़ा कम, या xanthophyll और कम है तो हो सकता है वो आपको ग्रीनिश कलर में भी दिखें. एंड फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन दैम एंड दैट इज कॉल्ड लेमिनेरियन स्टार्च. हम क्या बोलते हैं उसको? लेमिनेरियन starch we can call them, or you can call them mannitol. तो this is the reserve food. जैसे reserve food होता है in the form of you can say oil, you can say in the form of starch, तो उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है इन लेमिनेरियन फॉर्म में एंड मैनिटोल फॉर्म में. एंड द वेजिटेटिव सेल हैव द सेलुलोजिक वॉल. इनमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है. जो भी सेल का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटसाइड दे आर कवर्ड बाय द जिलेटिन. कुछ सब्सटेंस है जिसको कहते हैं जिलेटिन, उससे ये कवर होती है. एंड जिलेटिनस कवरिंग को हम कहते हैं एल्जिन. दिस इज जिलेटिनस कवरिंग इज नोन एज एल्जिन. वो एल्जिन जैसा सब्सटेंस होता है उससे कवर्ड रहती है. एंड दे हैव प्लास्टिड्स इन दैम. प्लास्टिड्स हम पढ़ चुके हैं तो वी ऑल नो दैट व्हाट आर प्लास्टिड्स. एंड दे हैव सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल. दैट मीन्स अगर ये सेल है तो इसके बीच में पाई जाने वाली सेंट्रली लोकेटेड एक वैक्यूल होगी बीच में. सेल, सपोज ये सेल है आपकी, तो इसमें एक सेंटर में लोकेटेड वैक्यूल देखने को मिलती है. एंड ऑल्सो दे हैव न्यूक्लियस. तो एक न्यूक्लियस भी होता है इनके अंदर. एंड द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम. यू कैन सी हेयर, ये सब सबस्ट्रेटम मीन्स ज़मीन से अटैच्ड होती हैं. तो सपोज दिस इज़ द लैंड, तो ये ऐसे यहाँ पर अटैच्ड होगी. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ नोन एज होल्ड फास्ट. अब ये रूट्स तो नहीं है बट यू कॉल देम
होल्ड फास्ट, दीज आर इक्वल टू द रूट्स। एंड स्टॉक होगा इस तरीके से, स्टॉक जैसा होता है, तो इस स्टॉक को हम कहते हैं स्टाइप, STIPE। इट इज़ इक्वल टू द स्टेम। एंड देन ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे करके, लीफी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, तो दिस इज यू कैन से इक्वल टू द लीफ, बट वी कैन कॉल देम फ्रॉन्ड, FROND, ऐसे पंखे जैसा ना, सॉरी जी नहीं है, डी है, फ्रॉन्ड, FROND, frond. Frond means equal to leaf-like structure. And vegetative reproduction takes place by the process of fragmentation. We all know what is fragmentation. तो fragmentation से इनके अंदर vegetative reproduction होता है. Asexual reproduction occurs by the biflagellate zoospore. ऐसे zoospore बनते हैं, biflagellate होते हैं, दो flagella होते हैं, and they are pear shape and have two unequal laterally attached flagella. What is this? You can see in this diagram. This is the, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो दीज आर कॉल्ड जूस्पोर्स एंड यू कैन से लेटरल सीलिया है इनके, फ्लैजिला है इनके अंदर, दे आर बाईफ्लैजिलेट और अनइक्वल भी हैं। पियर शेप, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पियर शेप, ये वाला स्ट्रक्चर पियर शेप स्ट्रक्चर कहलाता है। तो दे हैव पियर शेप zoospores and they have unequally laterally attached flagella. Sexual reproduction may be थ्री टाइप्स सारे पॉसिबल हो सकते हैं, दैट मीन्स आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस विच यू हैव स्टडीड अर्लियर, वो सारे पॉसिबल हो सकते हैं। एंड गैमेट्स कैन फ्यूज आइदर इनसाइड द वाटर और विद इन द ओगोनियम। ओगोनियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर भी फ्यूजन गैमेट्स का हो सकता है और वाटर के अंदर भी हो सकता है अगर ओगैमस स्पीशीज है तो। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, इसी शेप के होंगे, गैमेट्स पायरीफॉर्म शेप के मिलेंगे एंड इस तरह से सीलिया होंगे इनके अंदर। देर आर फेमस एग्जाम्पल लाइक फ्यूकस, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है FUCUS, फ्यूकस, तो इट इज़ अ वेरी यू कैन से कॉमन एग्जाम्पल। देन एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ये सारे, सारगासम, ये बहुत ही कॉमन जो है वो एग्जाम्पल हैं ब्राउन एल्गी के। एंड जो ब्राउन एल्गी है बेसिकली जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ब्राउन एल्गी का, ये बहुत बड़े होते हैं, तो समटाइम्स दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द शिप्स ऑल्सो। शिप्स वगैरह इसमें फंस भी जाते हैं कई बार, उससे उनको बहुत नुकसान होता है शिप्स को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फियोफाइसी और यू कैन से ब्राउन एल्गी। नाउ मूव टू द red algae. What is the important thing about the red algae? Red algae is very important, and also why they are important, because not only they are marine, basically ज़्यादातर ये सी में ही पाई जाती हैं, but appearance wise also they are most beautiful seaweeds. दे आर वेरी ग्रेसफुल, दे आर लुकिंग लाइक लेसेस, जैसे लेसेस होती है डिज़ाइन वाली, वैसे इस तरह से स्ट्रक्चर्स इनके हो सकते हैं। तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल वीड्स और कैन से सी वीड्स इन द फॉर्म ऑफ एल्गी के फॉर्म में जो है। एंड देयर साइज रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर टू हाफ अ मीटर लेंथ, मीन्स यूनिसेलुलर से लेकर के हाफ मीटर तक लेंथ में हो सकते हैं। एंड देयर कलर इज़ रेड, आपको पता है इसलिए उसका नाम रेड पड़ा है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रेड क्यों है, तो उसमें जो है कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल हैं उनके पास, बट बेसिक पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन, RPHY, फाइकोइरिथ्रिन। तो दिस इज द मेन पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन, दैट्स वाई दे शो द रेड कलर। एंड मेजॉरिटी ऑफ द एल्गीज आर फाउंड इन द सी वाटर, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस आर प्रेजेंट इन टू द डीप सी, बहुत गहरे में सी में भी हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। सनलाइट जितनी डीप में पेनिट्रेट कर जाती है सी के अंदर, तो आपको पता है बहुत अंदर होंगे तो उनको नहीं मिलता है सनलाइट जो है वो नहीं मिलता है वार्मर एरियाज़ में, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि जिस तरह का उनके अंदर पिगमेंट है, क्योंकि ग्रेटर डेप्थ ऑफ सी रेड एल्गी एग्जिबिट मोर रेडनेस, जितनी गहरे में उतनी ज़्यादा रेड है, क्योंकि उसमें बहुत क्वांटिटी में फिर फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल फिर वहाँ नहीं होता ग्रीन। एंड ब्लू ग्रीन वेवलेंथ आपको पता है सनलाइट की वो मैक्सिमम डेप्थ तक जा सकती है सी के अंदर, जो ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ होती है, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं फाइकोबिलियंस पिगमेंट बेसिकली। और जो शैलो रीजन्स होते हैं सी के, तो उनमें जो रेड एल्गी है इट अपीयर्स ग्रीन इन कलर ड्यू टू द मोर क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि वो शैलोअर रीजन पे है तो उसको सनलाइट अवेलेबल होती है, दैट्स वाई। एंड रेड एल्गी ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर पिगमेंट्स एंड देयर लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आर एबल टू ग्रो इन डेप्थ ऑफ सी। तो रेड एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट ज़्यादा हैं और वो उसी अकॉर्डिंग फिर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसी डेप्थ के हिसाब से वो सी में पाए जाएंगे कि बहुत डीप में हैं या थोड़ा ऊपर हैं,
तो इस तरीके से। और अब जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स हैं आपको पता है कि वो तो उनमें केवल ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल ए और बी वही डोमिनेट करता है बेसिकली, पर इनके अंदर ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट है और वो कितने डीप में जो है वो पाए जाते हैं। अब जो रेड एल्गी है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी हैव मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर तो मल्टी सेलुलर हैं, केवल कुछ ऐसे होंगे जो मल्टी सेलुलर शायद नहीं होंगे, बट मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडन स्टार्च, फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अगर स्ट्रक्चर देखें ना, स्ट्रक्चर वाइज जैसे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, वैसा ही फ्लोरिडियन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर होता है। और रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और दे कैन रिप्रोड्यूस आइदर बाई एसेक्सुअली और सेक्सुअल मेथड, तो तीनों मेथड होते हैं। तो एसेक्सुअल है अगर मेथड इनमें, तो बाई नॉन मोटाइल स्पोर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि देयर स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। एंड इफ़ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली तो उसमें भी नॉन मोटाइल गैमिट्स बनते हैं, ना कि स्पोर बनते हैं, ये आपको याद रखना। इफ़ देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन यू कॉल देम गैमिट्स नॉट स्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप एंड अकम्पनीड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, मीन्स प्रॉपर तरीके से इनके अंदर डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, सारे स्टेप्स होंगे इसके अंदर। एंड द कॉमन मेंबर्स आर पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, एंड ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम आर द एल्गी वी हैव स्टडीड दैट we use them in a form of obtaining agar-agar, and agar-agar is a substance which is used in growing the various kinds of bacteria on them, तो उसलिए वो यूज़ करते हैं। इनके अलावा carrageenan you have studied in previous lectures, and this is also a form of red algae which is used in preparation of chocolate milks to keep chocolate from setting out, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। and there is porphyra, porphyra, this is also an example, it is used in soups and मतलब एक सूप्स में डालते हैं, जो पीते हैं सूप, उसमें फ्लेवरेटिंग एजेंट के फॉर्म में वही यूज़ होता है, तो दैट मीन्स कि दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड ऑल्सो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ एल्गी यू हैव स्टडीड, एंड नाउ in the form of flow chart you have to make short notes on it so that you can understand all the topics very well. Thank you.